Now this is set 65/2/1. This set has come in March 2025. This is section A. This section comprises of 20 multiple choice questions of 1 mark each. Its first question is, the projection vector of vector A on vector B is, there are 4 options. Now इसका जो आंसर है वो आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंगली इसका आंसर B है. So projection of vector A on vector B is given by vector A dot unit vector B, vector A dot, this thing can be written as this, and this is equal to vector A dot vector B upon magnitude of vector B. So answer is B. So this is from the NCERT book. अगर आप NCERT book को देखोगे तो उसमें ये इसका right answer है. Now second question, the function fx is equal to x square minus 4x plus 6 is increasing in the interval. There are 4 possibilities and you have to find the right one. fx is equal to x square minus 4x plus 6. f dash x निकाल लो, 2x minus 4. f dash x is equal to 0 कर लो, आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी. Now function fx to be increasing means f dash x greater than equal to 0. It means x minus 2 greater than equal to 0. It means x greater than equal to 2. So function to be increasing in the interval 2 to infinity. तो interval कौन सा आएगा आपके पास? 2 to infinity. So D is the option. Now the third question is, if f 2a minus x is equal to fx, then integration of fx dx from 0 to 2a is. Now its answer is D. ये इसका right answer है. We know P6 जो आपका रूल है वो क्या है, 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx if f 2a minus x is equal to fx. अगर ये इसके इक्वल होता है तो आपका ये इसके इक्वल आता है. एंड fx dx from 0 to 2a is equal to 0 if f 2a x minus x is equal to minus fx. अगर ये माइनस के इक्वल होता है तो ये 0 होता है. अगर ये f 2a minus x is equal to fx होता है तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ fx dx from 0 to 2a is equal to 2 times integration of fx dx from 0 to a. So D is the option. Now the fourth question, if A is equal to this matrix is a symmetric matrix, then 2x plus y is, there are 4 options. आपके पास A ये आ गया, आपके पास A this is given, A dash आप निकाल लो, rows becomes column, column becomes rows, and A is equal, since it is a symmetric matrix, so A is equal to A dash. यहाँ पर हमने A लिखा, यहाँ पर हमने A dash लिखा. 12 is equal to 6x. तो अगर आप 12 is equal to 6x करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. और यहाँ पर 4y is equal to 8x करोगे और x की वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट करोगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 4. तो आप 2x प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो आप क्या करोगे, x की जगह 2, y की जगह 4 सब्सिट्यूट करोगे, आपके पास D ऑप्शन आ जाएगा. Now fifth question, if y is equal to sin inverse x, x lies between -1 to 0, then the range of y is, there are 4 options. आपने रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए y की वैल्यू आपको चाहिए, तो x आप -1 पुट कर लो तो आपकी y की वैल्यू -π/2 आ जाएगी. x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो तो आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी. सो तो B इज़ द ऑप्शन. तो मैंने ये, अगर इसका ग्राफ बना के देखोगे, ग्राफ आपका साइन इनवर्स x का ये ग्राफ होता है. अगर आप x की वैल्यू -1 से 0 लेते हो तो ये आपका ग्राफ आएगा. इसका मतलब -π/2 से 0, तो ये ग्राफिकली हो गया. अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हो ना तो देख लो, x लाइज बिटवीन -1 to 0, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. सो अगर हम x -1 लेते हैं तो आपके पास साइन y इज इक्वल टू -1 हो गया, सो y की वैल्यू -π/2 हो गई. इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन y इज इक्वल टू 0, y आपके पास 0 आ जाता है. तो आपका इंटरवल बनता है -π/2 to 0. B इज़ द ऑप्शन. सो रेंज इज, this is open bracket -π/2 to 0, so B is the option. Now the sixth question,
If a line makes angles of 3 pi by 4 and pi by 3 and theta with the positive direction of x, y and z axis respectively, then theta is, there are 4 options. A line makes angles 3 pi by 4, pi by 3 and theta with the positive direction of x, y, z axis. It means अल्फा आपके पास ये आ गया, बीटा ये आ गया, गामा आपके पास थीटा आ गया. आपने cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square गामा इज इक्वल टू 1. यू नो दैट. Substitute the value of alpha, beta, gamma. You will have, हाँ इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई, इसकी वैल्यू 1/4 आ गई. दिस प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1. तो cos square थीटा आपके पास आ जाएगा 1/4 एंड cos थीटा आपके पास प्लस माइनस 1/2. तो थीटा की वैल्यू आपके पास π/3 और 2π/3 होगी. तो यहाँ पर थीटा आपका क्या आएगा, π/3. सो B इज द ऑप्शन. Now 7th question. If E and F are two events such that PE is greater than 0 and PF is not equal to 1, then P E bar given F bar is, there are 4 options. तो आपको right option बतानी है. तो ये आप क्या हो जाएगा, इस P E bar given F bar is equal to P E bar intersection F bar upon P F bar. तो आपके पास इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ई यूनियन एफ अपॉन पी एफ बार. सो डी इज द ऑप्शन. नाउ 8th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स कैन बी सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए डैश. ए मैट्रिक्स कैन बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश. एड 1 and 2. दोनों को ऐड करोगे 2a इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश. 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0. सो a इज ए नल मैट्रिक्स. C इज द ऑप्शन. 9th क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 - 3 7 इज. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो इसके पैरेलल है और जो यहाँ से पास करती है. मुझे लगता है ये आप कर सकते हो. द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर दिस एंड पासिंग थ्रू दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस यहाँ पर आप यहाँ पर टी में लिखा हुआ है ना, तो आप टी ले लो. वैसे लैम्डा भी ले सकते हो. सिंस ये आपका आंसर टी में है तो यहाँ पर टी ले लो. सो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप ये आपको लिखना आता है. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस टी 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. सो आर वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस एंड दिस थिंग 4 प्लस 3ti कैप प्लस माइनस 3 प्लस टी जे कैप प्लस 7 प्लस 2t के कैप. सो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी. x आपके इसके इक्वल आ जाएगा, y इसके इक्वल आ जाएगा और z इसके इक्वल आ जाएगा. ठीक है. और इट मीन्स x इज इक्वल टू 3t प्लस 4, y इज इक्वल टू t माइनस 3, z इज इक्वल टू 2t प्लस 7. सो c इज द ऑप्शन. Now the 10th question. 4 friends Abhay, Beena, Chaya and Devesh were asked to simplify 4ab plus 3ab plus ba minus 4ba where a and b are both matrices of order 2 into 2. It is known that a is not equal to b, not equal to identity matrix and a inverse is not equal to b. Their answers are given as अभय का ये है, बीना ने ये बताया, छाया ने ये बताया और देवेश ने ये बताया. Who answered it correctly? So there are 4 options. आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आप बताओगे कि किसने आंसर आपको करेक्ट दिया है. Now 4ab plus 3ab plus ba minus 4ba. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4ab plus 3ab plus 3ba minus 4ba. 4 plus 3ab कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 7ab. इसमें से 3 minus 4 ba कॉमन ले लो, 3 minus 4 आ जाएगा तो ये b आ जाएगा. सो 7ab माइनस ba. तो आंसर किसने ठीक बताया? बीना ने. सो b इज द ऑप्शन. Now 11th question. A cylindrical tank of radius 10 cm is being filled with sugar at a rate of 100 pi centimeter cube per second. The rate at which the height of the sugar inside the tank is increasing is. There are 4 options.
आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. सो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो dV बाई डी, इसका हमने डेरिवेटिव किया, dV बाई dt इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dH बाई dt. dV बाई dt कितना दिया हुआ है, 100 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dH बाई dt. तो आपके पास R की वैल्यू है 10, तो आप dH बाई dt निकाल लो. So that comes out to be 1 is equal to dH by dt. Height of the sugar inside the tank is increasing at the rate of 1 centimeter per second. So C is the option. Now 12th question. Let vector P and vector Q be two unit vectors and alpha be the angle between them. Then vector P plus vector Q will be a unit vector for what values of alpha? There are 4 options. वेक्टर p प्लस वेक्टर q होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख दोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा. अब इसके भी अगर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर वेक्टर p डॉट वेक्टर q को आप ऐसे लिख सकते हो. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q भी आपके पास 1 आ गया कॉज अल्फ़ा. सो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉज अल्फ़ा and minus 1 is equal to 2 cos alpha. Cos alpha is equal to minus 1 by 2. तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 pi by 3. So D is the option. Now 13th question. The line x is equal to 1 plus 5 mu, y is equal to minus 5 plus mu, z is equal to minus 6 minus 3 mu passes through which of the following point? आपके पास 4 points हैं. आपके पास ये given है. इसको आपने कैसे लिख लिया, x माइनस 1 अपॉन 5. इसको कैसे लिख लिया, y प्लस 5 अपॉन 1. इसको कैसे लिख लिया, z प्लस 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू म्यू. तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो आप ऐसे लिख लेते हो, x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 3. सो लाइन कहाँ से पास की, 1 माइनस 5 और माइनस 6 से, विच इज द ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन. नाउ 14th क्वेश्चन. If A denotes the set of continuous functions and B denotes the set of differentiable functions, then which of the following depicts the correct relation between set A and B? तो आपका क्वेश्चन क्या है, A denote the set of continuous function and B denote the set of differentiable function. तो यहाँ पर इन्होंने 4 फिगर्स दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. अब आपके पास क्या हो गया, continuous function is depicted by A and differentiable function is depicted by B. All differentiable functions are continuous and all continuous functions are not differentiable. आपको ये चीज़ पता है. It means B is contained in A. B is a subset of A. It means B is contained in A. B is a subset of A. So आपका यहाँ पर ये वाला आपका जो फिगर है ये आपका ट्रू है and B is the answer. ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शंस है. सो डिफरेंशिएबल फंक्शन आपके सारे कॉन्टीन्यूस होंगे. B is a subset of A. So this is a correct answer. Now 15th question. The area of the shaded region in this figure, this is the shaded region, represented by the curves y is equal to x square, x lies between 0 to 2 and y axis is given by. ये आपका जो शेडेड रीजन है ये कहाँ पर किस में लाई करता है, x lies between 0 to 2 and function है y is equal to x square. This is the curve, this is the curve, y is equal to x square and this is the y axis and this is given by, आपके पास 4 ऑप्शंस है. तो इसका जो एरिया है वो कैसे पता चलेगा, तो ये आपके पास आंसर है इसका D. इसका आंसर है D, 0 to 4 x dy. So x is equal to root y from 0 to 4 and D is the option. Now 16th question. A factory produces 2 products x and y. The profit earned by selling x and y is represented by the objective function z is equal to 5x plus 7y, where x and y are the number of units of x and y respectively sold. Which of the following statements is correct? A. The objective function maximizes the difference of the profit earned from products x and y. B. The objective function measures the total production of products x and y. C. The objective function maximizes the combined profit earned from selling x and y. D. The objective function ensures the company produces more of product x than product y. आपका इसका ऑप्शन सी आएगा.
The objective function maximizes the combined profit earned from selling X and Y. Now 17th question. If A and B are square matrices of order M such that A square minus B square is equal to A minus B, A plus B, then which of the following is always correct? आपके पास 4 options है. You have to tell the right one. Now A square minus B square is given A minus B, A plus B. आप इसको A को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस B को इससे मल्टीप्लाई कर दो. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आपने ऐसे लिखा और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस. अब ये चीज़ और ये इक्वल तब आएगी अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. अगर ये इक्वल होंगे तो नेचुरली ए बी माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो ये 0 चीज़ हो गई. लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई. इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. Now 18th question. If P and Q are respectively the order and degree of the differential equation d by dx dy by dx raised to power 3 is equal to 0, then P minus Q is, there are 4 options. Now differentiate d by dx dy by dx whole cube is equal to 0. इसकी differentiation करते हो तो कैसे करोगे? 3 dy by dx square with respect to this. विद रिस्पेक्ट टू दिस करोगे तो आपके पास डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आया? ऑर्डर यहाँ पर 2 है, डिग्री 1 है. सो P आपके पास 2 आ गया, Q आपके पास 1 आ गया. P माइनस क्यू इज़ 2 माइनस 1. सो P माइनस क्यू इज़ 1. सो इट मीन्स B इज़ द ऑप्शन. Assertion and reason based questions. Direction. Question number 19 and 20 are assertion A and reason R based questions. 2 statements are given. One labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer from the options A, B, C and D as given below. A. Both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. B. Both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of assertion A. C. Assertion A is true but reason R is false. D. Assertion A is false but reason R is true. Now 19th question. Assertion A. A is a diagonal matrix whose diagonals are 3, 5, 2. Is a scalar matrix of order 3 into 3. Reason R. It is a diagonal matrix, has all non-zero elements equal. It is known as scalar matrix. तो reason R में उसने scalar matrix को बताया है कि जिसमें आप वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है और सारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं एंड दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. पर यहाँ पर उसने डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल्स बताए हैं वो 3, 5, 2 दे ऑल आर डिफरेंट एंड ही सेज कि इट इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स. सो दिस इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिख दिया है. सो यहाँ पर असर्शन ए इज़ फॉल्स and reason R is true. So D is the option. Now 20th question. Assertion A. Every point of a feasible region of linear programming problem is an optimal solution. And reason R. The optimal solution for a linear programming problem exists only at one or more corner points of the feasible region. तो ये आपका reason R is a true statement. And assertion A. Every point of a feasible region of a linear programming problem is an optimal solution. This is a false statement and this is a true statement. So A is false and so assertion A is false and reason R is true. So D is the option. Now section B. This section comprises of 5 very short answer VSA type questions of 2 marks each. 21st question A part. A vector A makes equal angles with all the 3 axes. If the magnitude of the vector is 5 root 3 units, then find A. Now vectors making equal angles with the axis means L is equal to M is equal to N. It means L square plus M square plus N square is equal to 1. So L square M square L हो जाएगा और M भी L हो जाएगा, N भी L हो जाएगा. तो आपके पास 3L square equal to 1 आ जाएगा. L आपके पास प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 आ जाएगा. मैग्नीट्यूड आपके पास है 5 रूट 3. सो वेक्टर इज 5 रूट 3 L I कैप प्लस L J कैप प्लस L K कैप. और यहाँ पर इसको आप रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा. सो दैट इज द आंसर. 21st क्वेश्चन बी पार्ट.
If alpha vector and beta vector are position vector of 2 points P and Q respectively, then find the position vector of a point R in QP produced such that QR is equal to 3 by 2 QP. Now position vector of P is alpha, position vector of Q is beta. Let the position vector of R is R vector. अब आपने क्या करना है? You are to find the position vector of R such that QR is equal to 3 by 2 QP. आप इसको लिख लो. ना क्यू आर वैक्टर को कैसे लिखोगे? ओ आर वैक्टर माइनस ओ क्यू वैक्टर. क्यू पी को कैसे लिखोगे? ओ पी वैक्टर माइनस ओ क्यू वैक्टर. और यहाँ पर ये आर वैक्टर है, ये बीटा वैक्टर है, ये अल्फा वैक्टर है, ये बीटा वैक्टर है. आप बीटा वैक्टर को राइट हैंड साइड ले लो, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. सो आर वैक्टर इज 3 अल्फा वैक्टर माइनस 2 बीटा वैक्टर अपॉन 2. सो दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. यू आर टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 4. अब 1 को आप कैसे लिखोगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. एंड साइन 2x का फॉर्मूला क्या लोगे? 2 साइन एक्स कॉस एक्स. अब ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर का. और ये अंडर रूट में है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 4. अब आप इसको आप कैसे लिखते हो? साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 प्लस कॉज एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 4. इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 1. सो दैट इज द आंसर. 23rd क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इज इंक्रीजिंग ऑन आर. आपके पास ये फंक्शन है, आप एफ डैश एक्स निकाल लो. एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. आपको ए की वैल्यू बतानी है और ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है. अगर एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉज एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वी नो कॉज एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉज एक्स इज कौन सी हो गई? -1. तो कॉज एक्स को -1 ले लो. -1 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए. वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू -1. सो दैट इज द आंसर. Now 24th question. If vector A and vector B are two non-collinear vectors, then find x such that alpha is equal to x minus 2a vector plus b vector and beta is equal to 3 plus 2x a vector minus 2b vector. They are collinear. Now alpha vector is this, beta vector is this, alpha vector and beta vector are collinear. It means alpha vector can be written as lambda times beta vector. तो अल्फ़ा वेक्टर आपके पास ये था, बीटा वेक्टर ये था, यहाँ पर लैम्डा आ गया. अब आपने लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा को इससे कर दिया. अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 2x. एंड यहाँ पर b का वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर b वेक्टर का कोएफिशिएंट -2 लैम्डा है. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -1/2. -1/2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 1/4. Now 25th question A part. If x is equal to e raised to power x by y, then prove that dy by dx is equal to x minus y upon x log x. Now x is equal to e raised to power x by y. Taking log on both sides, दोनों तरफ log लिख लो. ये आपके पास log x आ जाएगा. यहाँ पर x by y log e आ जाएगा. log e is 1. सो log x इज इक्वल टू x बाई वाई. दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर लो, ये आ जाएगा 1/x. यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा. अब ये वाई स्क्वायर इस साइड ले जाओ, वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. सो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे ले जाओ, बाकी आप वेरिएबल्स दूसरे साइड ले जाओ. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. डी वाई बाई डी एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बाई वाई. ये वाई मैंने इसके नीचे ले गई तो डिनोमिनेटर में इसके ले गई. तो अब आपके पास एक्स माइनस वाई एक्स बाई वाई दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स. जो एक्स बाई वाई है वो यहाँ से देखो, एक्स बाई वाई किसके इक्वल है? लॉग एक्स के. तो हमारे पास एक्स लॉग एक्स आ गया. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रूव. इसमें फिर से ध्यान दो, हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर थोड़े से स्टेप्स करने पड़े. तो वो स्टेप्स मैंने इस तरह से किए. तो अब आप देख लो
कि वो आंसर निकालने के लिए हमें ऐसा स्टेप्स करने पड़े ताकि हमारा मैच हो, हम लोग प्रूव कर सके dy by dx is equal to x minus y upon x log x. Now 25th question B part. If fx is equal to 2x minus 3, x lies between minus 3 to minus 2 and x plus 1 if x lies between minus 2 to 0. Check the differentiability of fx at x is equal to minus 2. हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है -2 पर. अब मैं पहले इसको चेक करूँगी कि वेदर इट इज़ कॉन्टिन्यूस और नॉट एट -2, बिकॉज अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं है. तो इसका मतलब अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेती हूँ, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं आता तो इसका मतलब ये -2 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट आई विल चेक लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू f-2. तो पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -2 माइनस फंक्शन कौन सा लोगे 2x minus 3. तो आपने ये फंक्शन ले लिया. अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह -2 माइनस h लिखोगे. ये आपके पास आ जाएगा -4 minus 2h minus 3. आपके पास आ गया -7 minus 2h. h टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू -7. अब राइट हैंड लिमिट ले लो. लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, अब आप फंक्शन क्या लोगे x plus 1. x की जगह -2 plus h plus 1 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा h minus 1 इज, और h 0 पुट करोगे तो आपके पास -1 आ गया. तो हम यही देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो आगे हमें f इज इक्वल टू -2 करोगे तो वो आपका 7 आ जाएगा, पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है. So function is not continuous at x is equal to -2. So function is not differentiable at x is equal to -2. Now section C. This section comprises of 6 short answer type questions of 2 marks each. 26th question A part. Solve the differential equation 2y plus 3 minus xy dy by dx is equal to 0 given y1 is equal to -2. Now this is the differential equation. Now take this number to this side and you will have 2 by x, इस x को इसके नीचे ले आओ और y plus 3 को इसके नीचे y के नीचे ले आओ. तो आपके पास आ जाएगा 2 by x dx is equal to y by y plus 3 dy. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास 2 log mod x plus c is equal to, इसमें 3 ऐड कर दो और 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. आपके पास आ जाएगा y plus 3 minus 3 upon y plus 3 dy. अब इसको देखो, ये आपका कैसे लिखा जाएगा y plus 3 upon y plus 3 minus 3 upon y plus 3 dy. तो ये आपका कैंसिल होके 1 आ जाएगा. तो इस ये 1 की इंटीग्रेशन हो गई, माइनस 3 अपॉन y प्लस 3 की इंटीग्रेशन हो गई. तो अब आपके पास क्या आ गया 2 log mod x प्लस सी इज इक्वल टू y माइनस 3 log y प्लस 3. सो अब इसमें x1 y माइनस 2 सब्सिट्यूट कर दो तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी. तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई. सो c की वैल्यू -2 उसमें सब्सिट्यूट कर दो तो आपके पास 2 log mod x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 log y प्लस 3 आ गया. सो दैट इज द आंसर. Now 26th question B part. Solve the following differential equation. 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to 4x square. आपके पास आ जाएगा dy by dx plus 2xy 1 plus x square is equal to 4x square upon 1 plus x square. dy by dx plus इसको आप कैसे लिख लोगे 2x upon 1 plus x square y is equal to 4x square upon 1 plus x square. इसको मैंने 1 का नाम दे दिया है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो. कैसे आएगा e इंटीग्रेट करोगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स. ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है. सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स. सो ई लॉग 1 प्लस एक्स स्क्र. ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इसके दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे. आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्र. ये आप ये किसके इक्वल है डी बाई, अगर आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हो तो ये आता है. सो डी बाई डी एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4x स्क्र. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
आपके पास आ जाएगा y 1 + x² इंटीग्रेट 4x² dx। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है 4x³ + c। सो y इज इक्वल टू 4x³ 1 + x² + c upon 1 + x²। So that is the answer. Now 27th question. Let R be a relation defined over n, where n is a set of natural numbers defined as mRn, if and only if m is a multiple of n. mn belongs to n. Find whether R is reflexive, symmetric and transitive or not. Now अब आपके पास R क्या रिलेशन है? mRn. m is a multiple of n. ये आपके पास R आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि whether it is reflexive or not. Now reflexive के लिए mRm मतलब m is a multiple of m and this is true. m is a multiple of m and which is true, so reflexive है। अब आ जाओ symmetric पे। mRn, तो अब हमें क्या प्रूव करना है? nRm मतलब mRn means m is a multiple of n, nRm means n is a multiple of m and this is not true. Now इसको हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। 6R3, it means 6 is a multiple of 3. 3R6, 3 is not a multiple of 6. It means R is not symmetric. नेक्स्ट पेज पे मैं प्रूव करूँगी ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट पेज पे मैं प्रूव करूँगी कि ये आपका ट्रांजिटिव है। नाउ इफ mRn and nR R1 then mR R1। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं? इफ mRn m is a multiple of n, nR R1 n is a multiple of R1, तो m is a multiple of R1, m R1 का मल्टीपल है। तो ये हमने प्रूव करना है। mRn means m is a multiple of n, तो m को आप क्या लिख सकते हो? kn, where k is a constant. nR R1, it means n is a multiple of R1, it means n को आप क्या लिख सकते हो? PR1, where p is a constant. अब आप m is equal to kn लिखो, n की जगह आप PR1 लिख दो, तो ये आपके पास हो जाएगा KPR1, तो ये आपके पास कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स m इज इक्वल टू कांस्टेंट R1. इट मीन्स m इज ए मल्टीपल ऑफ R1. दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, सो विच इज ट्रू, सो R इज ट्रांजिटिव। सो इट मीन ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। Now 28th question. Solve the following linear programming problem graphically. Minimize z is equal to x minus 5y. Subject to constraints x minus y greater than equal to 0, minus x plus 2y greater than equal to 2, x greater than equal to 3, y less than equal to 4, y greater than equal to 0. अब आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओगे, अब वैल्यू 0 0 आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी, तो ये ग्राफ आप बना सकते हो। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2, अगर x 0 है, y 1 है, x माइनस 2 है, सो y 0 है, तो आप इसके पॉइंट्स लेके ग्राफ बना लोगे। यहाँ पर मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लिए, x इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के, वो 3 3 आ जाएंगे। Intersecting points of x minus y 0 and y is equal to 4, they are 4 4. Intersecting points of x is equal to 3 minus x plus 2y is equal to 2, they will come out to be 3 and 5 by 2 means 3 and 2.5. Intersecting point of y is equal to 4 and minus x plus 2y is equal to 2. This is 2. So intersecting point of y is equal to 4 and माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2, वो आ जाएंगे 6 and 4। सो नेक्स्ट पेज पे मैंने इनका ग्राफ बनाया। फिर से देखो, मैंने सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज, ये आपका मिनिमाइज का आपका है, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिस। सो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लेके, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लेके मैं उनका नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाने लगी हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, नौ यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया, ये लाइन ग्राफ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का, और ये लाइन ग्राफ है हमारा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 का, और हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लिए थे इस लाइन के साथ, और इस लाइन के भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे हमारे पास, और इस लाइन के भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे। तो ये हमारे पास लाइन y इज इक्वल टू 4 की है, ये लाइन हमारे पास x इज इक्वल टू 3 की है। तो आपका ये वाला पोर्शन आएगा
जो आपका फिजिबल रीजन आएगा। दिस इज़ द फिजिबल रीजन। तो इसके हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 6, 4, 3, 2.5 एंड 3, 0। दे आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारा द फिजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड, दिस इज़ अनबाउंडेड एंड कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस। z हमारे पास ये है, तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की 6, 4, 3, 2.5 एंड 3, 0। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। z is minimum at 6, 4. Now this the minimum value is this. Z is minimum at 6, 4. Feasible region is unbounded. We have to draw the graph of x minus 5y less than minus 14. We have to draw the graph of x minus 5y less than minus 14. इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लेके इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। तो ये ग्राफ कौन सा आया? ये डॉटेड लाइन का जो ग्राफ आया, ये हमारा इस चीज़ का ग्राफ आया। एंड दिस लेस देन माइनस 14, तो इसमें कौन सा रीजन आता है? इसमें ये वाला रीजन आता है, ये जो मैंने शेड दिखाया है, ये वाला रीजन आता है। अब इस रीजन का और इस रीजन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर मिनिमम है, इस पॉइंट पे मिनिमम। अगर इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं निकलता तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पे ये मिनिमम है। अगर इनका कॉमन पॉइंट आएगा फिर नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर इनका कॉमन पॉइंट नहीं आता, आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पे ये मिनिमम है। नाउ अगेन लिसन टू मी। इस तरह के सम्स में जिसमें उसने मिनिमाइज का पूछा है और उसमें आपका रीजन अनबाउंडेड आता है, इस तरह के सम में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है और इस ग्राफ ड्रॉ करने पे उसका आपको ये रीजन देखना पड़ता है। अगर उस रीजन का और इस रीजन का कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आपका ये पॉइंट मिनिमम होता है। नाउ z इज मिनिमम एट 6, 4. As feasible region is unbounded, we have to draw the graph of this. The resulting open half plane has no common point with feasible region, thus the minimum value of z is equal to minus 14 at 6, 4. Let me say it again. The resulting open half plane has no common point with the feasible region. This has no common point with the feasible region. Thus, the minimum value of z is equal to minus 14 at 6, 4. Now 29 question A part. If y is equal to log root x plus 1 by root x whole square, then show that this. यहाँ पर जो y1 है वो dy by dx है, y2 है वो d square y upon dx square है। तो हमारे पास y ये है, तो यहाँ पर ये स्क्वेयर है, तो मैंने इसको पहले स्क्वेयर को सॉल्व कर लिया, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 बाय x प्लस 2। तो y आपके पास ये आ गया। पहले मैं dy by dx निकालने लगी हूँ, फिर मैं आपका d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वेयर निकालने लगी हूँ। तो ये y आपके पास ये है, dy by dx इज, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? 1 अपॉन दिस dy by dx विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो आपने इसकी डिफ्रेंशिएशन कर ली और यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ y1 इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लिया और इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये आपके पास क्या आ जाएगा? x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके फैक्टर बना लो और इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक x और एक x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैं इसको लेने लगी हूँ और मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने लगी हूँ। अगेन ये आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने क्वोशिएंट रूल लगाया है और इसको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाया है और क्वोशिएंट रूल लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है? सिंप्लीफाई करोगे आपके पास y1 dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा और y2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। आपके पास ये दोनों आ गए आपके पास। अब आपने सॉल्व करना था, अब आपने क्या सॉल्व करना था? दिस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ y2 की वैल्यू लगेगी, यहाँ y1 की वैल्यू लगेगी। तो आपने उसको सॉल्व करके देखना है कि वो 2 आता है कि नहीं आता। तो
तो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, y2 की जगह मैंने ये लिख दिया, y2 की जगह ये लिख दिया, y1 की जगह ये लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, ये नंबर आपके कट हो रहे हैं तो ये भी यहाँ पर कट हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ गया। और इसको एलसीएम लोगे x और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, विच इज़ दिस इज़ व्हाट यू वांट टू प्रूव। Now 29th question B part. If x root 1 plus y root 1 plus x is 0, x lies between minus 1 to 1, x is not equal to y, then prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x whole square. मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने लगी हूँ। मैं y इन टर्म्स ऑफ x लिखने लगी हूँ ताकि हम dy by dx निकाल सके और वो ईजी हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन है, इसको इस साइड ले गए और स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। आई विल गेट एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर 1 प्लस एक्स इन द ब्रैकेट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, विल हैव एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसको इस साइड ले गई, इसको इस साइड ले गई। आई विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। इसके फैक्टर्स बना लिए, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से वाई एक्स कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स। ये अब आपका x माइनस वाई है, ये आपका y माइनस एक्स है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा वाई एक्स एक्स माइनस वाई। अब दोनों साइड को मैं x माइनस वाई से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स। अब आप x इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स, सो x इज इक्वल टू माइनस वाई कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स, सो y आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैंने y इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया सो दैट हमारा सम थोड़ा इजी हो जाए। सो dy बाई डी एक्स निकालो, ये इस पर क्वेश्चन रूल लगेगा, वो आप लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन रूल लगाइए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो दैट रिजल्ट इज माइनस 1 upon 1 plus x whole square. This is what you want to prove. Now 30th question A part. A die with number 1 to 6 is biased such that probability of 2 is 3 by 10 and probability of other number is equal. Find the mean of the number of times number 2 appears on the dice if the dice is thrown twice. So 2 आने की probability कितनी है? 3 by 10. So probability of getting number other than 2 is 1 minus 3 by 10, that is 7 by 10. तो आप small p को ले लो, probability of getting number 2, let it be success, that is equal to 3 by 10. Q, probability of getting number other than 2, that is failure, that is 7 by 10. तो आपके पास n 2 आ गया, p 3 by 10 आ गया, q 7 by 10 आ गया. So p probability of x 0, आपके पास एक भी बार नंबर 2 नहीं आया. सो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे 2c0 3 by 10 रेज टू पावर 0 7 by 10 रेज टू पावर 2. इसको सॉल्व करोगे 49 by 100 आ जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 1, 2c1 3 by 10 रेज टू पावर 1 7 by 10 रेज टू पावर 2 माइनस 1. सॉल्व करोगे 42 by 100 आ जाएगा. px2 2c2 3 by 10 रेज टू पावर 2 7 by 10 रेज टू पावर 2 माइनस 2. आपके पास 1 इंटू 9 by 100 आ जाएगा. आपके पास 9 by 100 आ जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास x हो गया 0, यहाँ पर x हो गया 0 1 2 और px हो गया 49 by 100 42 by 100 9 by 100. इसको ऐड करके देखो, ये आपके पास 1 आता है. तो अगर आपके पास 1 नहीं आता तो कहीं कैलकुलेशन में गलती है. तो इसका मतलब मीन निकालना है. मीन कैसे निकालोगे? सिग्मा पी आई एक्स आई. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, इसको इससे करो और ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6. Now 30th B part. 2 dice are thrown. Defined are the following 2 events A and B. A is set of all xy such that x plus y is 9. B set of all xy such that x is not equal to 3. Where x, y denote a point in the sample space. Check if events A and B are independent or mutually exclusive. तो आपके पास 2 dice are thrown. So sample space has 36 outcomes. You know that. And A is a set of all xy, x plus y is 9. तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं?
ए के जो एलिमेंट्स होंगे दोज विल बी 3 6 4 5 5 4 6 3. If you substitute x3, y will come out to be 6. If you substitute x4, y will come out to be 5. If you substitute 5, y will come out to be 4. And if you substitute 6, y will come out to be 3. So ये आपके a के elements आ जाएंगे. और probability of getting a is, they are 4 in numbers, 4 upon 36, that is equal to 1 by 9. Now b. Set of all x y such that x is not equal to 3. x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए. 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, बट 3 नहीं होगी. तो मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख दिए. तो ये दे आर 30 इन नंबर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 30 by 36, दैट इज 5 by 6. अब इसमें ये देखो, एक छोटी सी चीज़ मैं यहीं से बता देती हूँ कि इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं. इसमें 3 6 इसमें है, इसमें नहीं है. 4 5 इसमें है, 4 5 इसमें है, 5 4 इसमें है, 5 4 इसमें है, 6 3 इसमें है एंड 6 3 इसमें है. इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स इनमें आपस में कॉमन है. अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है एंड ए इंटरसेक्शन बी में मैं एलिमेंट्स लिखूंगी. वो इंटरसेक्शन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी. एंड प्रोबेबिलिटी अगर इंडिपेंडेंट शो करना हो तो आपका पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए. तो लेट्स चेक ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ ए इंटरसेक्शन बी के ये एलिमेंट्स हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 by 36, 1 by 12 हो गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास हमने देख ली है, दैट इज़ 1 by 9 एंड 5 by 6, दैट इज़ 5 by 54. तो दोनों इक्वल नहीं है. ये 1 by 12 इज़ नॉट इक्वल टू 5 by 54. सो इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. अब फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वी नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डोंट हैव कॉमन आउटकम. उनमें कॉमन आउटकम नहीं आती. इसका मतलब हेयर 4 5 5 4 6 3 are there in both the events A and B. So A and B are not mutually exclusive. So they are not independent. They are not mutually exclusive. Now 31st question. Find integration of 1 by x root x plus a upon x minus a dx. अब आप इसको t ले लो. इसको t लोगे तो t स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा. अब इसको x इन टर्म्स ऑफ t लिखो. तो x इन टर्म्स ऑफ t लिखोगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. t स्क्वायर x माइनस टी स्क्वायर a इज इक्वल टू एक्स प्लस ए. x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, t वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ. यू विल हैव x टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a टी स्क्वायर प्लस 1. सो x आ जाएगा a टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1. इसका dx फाइंड करो. तो ये आपका क्वेश्चन रूल लगेगा. क्वेश्चन रूल से आप इसको सॉल्व करते जाओगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस 4t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dt. आपके पास dx की वैल्यू भी है. इंस्टेड ऑफ x you will write this in terms of t. Instead of dx you will write this. Again instead of this you will write this. So everything will come in terms of t. अब आपके पास x, you have this x, you have this dx, you have this t. So substitute here, and when you substitute here you will get, after simplifying it you will get this. It means you are to integrate this. अब ये समझ आ रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा. सो हाउ यू विल डू इट, माइनस 4t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 t प्लस 1 t माइनस 1 इज इक्वल टू a t माइनस 1 b t प्लस 1 c t प्लस d अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस नंबर, यू विल गेट दिस. अब आप मुझे लगता है पार्शियल फ्रैक्शन से सम्स करने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो हाउ टू डू दैम, एंड you will write this. Now आपके पास ये आ जाएगा. अब आपने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट सब्स्टिट्यूट t is equal to minus 1, you will have the value of b. If you substitute t as 1, you will have value of a, that is minus 1. If you compare the constant terms, you will have the value of d, which is minus 2. And if you compare the coefficient of t cube,
you will have value of c which is 0. Now you will have this. After substituting the values of a, b, c, d, you will have this. And integrating both sides, you will get this. Now you have to integrate this, and integrate this. Now this minus, you will have this minus here, you will have this minus here. And integration of this is minus log t minus 1. Integration of this is log mod t plus 1. Integration of this is minus 2 tan inverse t. Instead of t, substitute root x plus a upon x minus a. And that is the answer. Now section D. This section comprises of 4 long answer type questions of 5 marks each. 32nd question. Using integration, find the area of the region bounded by the line y is equal to 5x plus 2, the x-axis, and the ordinates x is equal to minus 2 and x is equal to 2. So first I will make the graph of y is equal to 5x plus 2. x0 ले लोगे तो y2 आ जाएगा, x2 ले लोगे y12 आ जाएगा. x is equal to minus 2 का ग्राफ, x is equal to 2 का ग्राफ. Now this is graph of x is equal to 2. This is graph of x is equal to minus 2. And x is equal to 0, y2. कौन सा पॉइंट आया? x0, y2, this point. And x2, y12, this point. You draw this line. इस लाइन का और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा -2 and -8. एंड इस लाइन का इस एक्स एक्सिस पे जो ये पॉइंट आएगा वो -2/5 और 0 आ जाएगा. फॉर दिस पोर्शन यू विल टेक द लिमिट्स फ्रॉम -2 to -2/5. फॉर दिस पोर्शन यू विल टेक द लिमिट्स -2/5 to 2. अगेन ये आपका नेगेटिव साइड पे है तो इसमें आपका जो फंक्शन लगेगा उस पर माइनस लगेगा और इस पे आपका फंक्शन पे माइनस नहीं लगेगा. तो ये अब मैं नेक्स्ट पेज पे ये ग्राफ एक्सप्लेन करने लगी हूँ. सो आपका ग्राफ लगेगा -2 to -2/5 -y dx प्लस -2/5 to 2y dx. y की वैल्यू क्या आ गई 5x plus 2 तो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू 5x plus 2 आ जाएगा. अब इसका सॉल्व करना आपको आता है तो ये कर सकते हो आप. और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना कि आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा. तो ये आपके पास आ जाएगा 5x 2/2 2x फ्रॉम -2 to -2/5 और मैंने माइनस बाहर ले लिया है. प्लस इसका आ जाएगा 5x² अपॉन 2 प्लस 2x -2/5 to 2. Now put the substitute the values and ultimately you will have the answer 104/5. तो आप इसको पॉज कर सकते हो मेरी वीडियो को और इसका आंसर चेक कर सकते हो. Now question number 33, find integration of this. हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे. x² plus x plus 1 upon x plus 2 x² plus 1. This can be written as a upon x plus 2 plus bx plus c upon x² plus 1. Multiply both sides by x plus 2 x² plus 1. You will have this. a के साथ आपके पास आ जाएगा x² plus 1 plus bx plus c x plus 2. सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू -2. तो यहाँ पर सब्सिट्यूट करके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² तो आपके पास b आ जाएगा 2/5. कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू विल हैव c विच इज़ इक्वल टू 1/5. तो यहाँ पर आपके पास c आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1/5. सब्सिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ a b c इन दिस इक्वेशन. आपके पास a b c आ गया तो यहाँ पर आप सब्सिट्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x² plus x plus 1 upon x plus 2 x² plus 1 is equal to 3/5 x plus 2 plus 2/5 x plus 1/5 upon x² plus 1. दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करोगे तो इसको इंटीग्रेट किया और इसको इंटीग्रेट किया तो ये 3/5 कांस्टेंट था बाहर आ गया. 1/x plus 2 dx plus 1/5 2x plus 1 x² plus 1 dx. अब आपका ये यहाँ पर तो आ गया log x plus 2 plus 1/5 और यहाँ पर आएगा आपको ये इसको लिख सकते हो 2x upon x² plus 1 plus 1 upon x² plus 1. तो ये तो आपके पास आ गया 2x upon x² plus 1 dx plus 1 over x² plus 1 dx. तो ये आपके पास 3/5
आपके पास आया 3/5 log x plus 2 plus 1/5 log x square plus 1 because this is fx f dash x, this is fx, because this is fx, this is f dash x, so this is log x square plus 1 plus 1/5 and this is the integration of tan inverse x square plus 1 plus c, so that is the answer. Now 34th question A part, find the shortest distance between the lines this and this. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपका ये फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और ये आपका मॉड आ जाएगा कि आंसर आपका डिस्टेंस का प्लस में आता है. तो ये आपके पास दो लाइंस हैं, तो यहाँ पर a1 क्या हो गया, a1 हो गया -1 1 एंड 9. a1 आपके पास ये आ गया, b1 आपके पास आया 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, एंड ये सेकेंड लाइन आ गई. इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ये मत भूला करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना याद रखा करो. तो बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते. तो यहाँ पर a2 आ जाएगा 3 माइनस 15 एंड 9 एंड b2 आ जाएगा 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 5k कैप. अब आपने क्या फाइंड करना है, b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा. आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, आप क्या करने लगे हो, a2 माइनस a1 फाइंड कर लिया, फिर b1 एंड b2 आ गया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो. अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे आपके पास ये आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो. मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपके पास 16√3 आ जाएगा. अब a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 192. एंड अब 192 में अब नीचे b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 16√3 आ गया. ये आपका डॉट प्रोडक्ट आपके पास 192 आ गया था और मैग्नीट्यूड इसका क्या आया था 16√3. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 4√3. सो दैट इज द आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स. नाउ 34th क्वेश्चन B part, find the image A dash of a point A in the line L. This is the line. Also find the equation of line joining A dash. Find the foot of the perpendicular from a point A on the line L. आपके पास ये पॉइंट A है, आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है. इस लाइन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में भी. लेट M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आपके पास लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 ये आ जाएंगे. अब आपके पास इसकी डायरेक्शन रेशोज भी निकाल लोगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस. इस लाइन की डायरेक्शन रेशोज 1 -1 -1 आ जाएगी. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, सो आपका रूल लगेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. वहाँ से आप लैम्डा निकाल लोगे और लैम्डा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा. नाउ A डैश इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट. M आपका मिड पॉइंट है, तो आपका इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा. सो x1 प्लस 2/2, y1 प्लस 1/2, z1 प्लस 2/2, वो आपका ये पॉइंट आ जाएगा. और लैम्डा की वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप दोनों के इक्वेट करोगे तो आपके पास x1 y1 एंड z1 आ जाएगा. फिर वहाँ से आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लोगे. सो ये आपका सम है. तो मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है. देखो कि ये आपके पास लाइन है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में मैंने लिख लिया है. कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आ जाएंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आ जाएंगे, आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ m लिख लोगे, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ m आ गए. अब आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ m है. AM इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन इज दिस. तो आपके पास दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस किसके इक्वल आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंगली. यहाँ से आपका लैम्डा निकल आया. इस लैम्डा को आप m की कोऑर्डिनेट्स में इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, इस लैम्डा को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. लेट x1 y1 z1 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश. m इज द मिड पॉइंट ऑफ a डैश, तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा. इसको इससे दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. यहाँ से आप करोगे तो आपके पास x1 y1 z1 आ जाएगा.
सो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 16/3, 11/3 एंड 8/3। ये आपके पास ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इक्वेशन ऑफ ए डैश है वो आप लिख लो, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, फिर डायरेक्शन रेशियोज के बाद आप इक्वेशन ऑफ ए डैश लिख लो। तो दिस इज द आंसर। नाउ 35th क्वेश्चन बी पार्ट, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स, हैज सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, इट विल कम आउट टू बी 1 and that is not equal to 0, so A is invertible. आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लो, which is equal to 1 which is not equal to 0, so A is invertible. अब आप कोफैक्टर्स निकाल लो इस मैट्रिक्स के, तो मैंने यहाँ पर कोफैक्टर्स A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, then A13 is 2, A21 is -2, A22 is 1, A23 is -1, A22 is 1, A23 is 1 and A31 is -4, A32 is 2, इसी तरह से A33 is 3। सो आपने ये कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। सो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये होता है एंड इसका ट्रांसपोज होता है, तो आपके पास ये आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लो तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो ए इनवर्स आपके पास ये आ गया। नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस। नाउ आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, x minus 2y is equal to 10, 2x minus y minus z is equal to 8, minus 2y plus z is equal to 7। आपके पास ए ये मैट्रिक्स आपके पास है। नाउ वी हैव दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड वी हैव दिस ए। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। अब ये देखो कि ये आपके पास ए है, ए में दिस इज़ 1 2 0, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है 1 2 0, और यहाँ पर -2 -1 -2 एंड दिस इज़ -2 -1 -2 एंड 0 -1 1 0 -1 1। तो ये आपका इसका ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ये आपके पास A ट्रांसपोज x इज इक्वल टू बी आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू A ट्रांसपोज -1 b, सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज A इनवर्स ट्रांसपोज b। A इनवर्स हमारे पास हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज आ जाएगा एंड b इज 10 8 7, तो उसका ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 -2 रोज बिकम्स कॉलम, तो ये हमने रोज बिकम्स कॉलम लिख लिया एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी विल हैव दिस। इसको सॉल्व किया, वी विल हैव दिस एंड ये आपके पास आ जाएगा 0 -5, ये आपके पास आ जाएगा 0 -5 -3। सो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है, z की वैल्यू -3 है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है कि x -2 ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास है, ए आपके पास ये है, इसको जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको चेक करना है कि ये आपके पास ए ट्रांसपोज है, ए नहीं है, तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज आएगा तो x इज इक्वल टू AT-1 आएगा, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट राइट आंसर। नाउ 35th क्वेश्चन ए पार्ट, गिवन A is this matrix and B this matrix, find AB, hence solve the system of linear equations this: x minus y plus z is equal to 4, x minus 2y minus 2z is equal to 9, 2x plus y plus 3z is equal to 1। तो आपके पास A ये है, B ये है, आप AB इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये आ जाएगा एंड 8 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो AB इज 8i, तो ये आपके पास you will get this, AB is equal to 8i, where A is this matrix and B is this matrix, and this is our system of equation. So this thing can be written as 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 x y z, and this is equal to 4 9 1. Now this is B, you see this is B, so this is B and this is x and this is C, so x is equal to B inverse C, so x is equal to, now तो आपके पास B इनवर्स आपके पास आ जाएगा A/8,
अब आपके पास x हो गया एक्स वाई जेड 1/8, a आपके पास ये मैट्रिक्स हो गई, c आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और यू विल हैव एक्स वाई जेड 1/8 एंड दिस। इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8, 24 - 16 - 8। सो आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएगा 3 - 2 - 1। सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू -1। सो दैट इज द आंसर। This is section E. This section comprises of 3 case study based questions of 4 marks each. Its 36th question is, a school is organizing a debate competition with participants as speakers as, there are 4 elements here, S1, S2, S3, S4, and these are judged by judges J, J1, J2, J3. These 3 are the elements of J. Each speaker can be assigned 1 judge. Let R be a relation from set S to J defined as, relation is R is a set of XY, speaker X is judged by judges Y, where X belongs to S and Y belongs to J, and they have provided you with this figure. यहाँ पर डिबेट लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 स्पीकर्स हैं जो कि यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। तो ये मैंने एक रफ सा स्केच बना दिया है जो आपके पेपर में प्रोवाइड किया गया स्टूडेंट्स को। नाउ रीड ऑन द अबव, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम एस टू जे। सेकेंड इज ए स्टूडेंट आइडेंटिफाइज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू जे एज एफ इज इक्वल टू S1 J1, S2 J2, S3 J2, S4 J3. Check if it is bijective. Now third question, A part. How many 1-1 functions can be there from set S to set J? It's B part. Another student considers a relation R1 is equal to S1 S2, S2 S4 in set S. Write minimum ordered pairs to be included in R1 so that R1 is reflexive but not symmetric. Now it's first, हमारे पास S ये है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, J में हमारे 3 एलिमेंट्स है, एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम S to J. In S there are 4 elements, in J there are 3 elements. So number of relations from S to J, 2 raised to power 4 into 3, 4 into 3, 2 raised to power 4 into 3, that is 2 raised to power 12. इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4096. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, आपके पास S में ये एलिमेंट्स है, J में ये एलिमेंट्स है. ए स्टूडेंट आइडेंटिफाइज द फंक्शन फ्रॉम S to J एज दिस. चेक इफ इट इज़ बाइजेक्टिव. तो ये हमारा क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट था. तो इसको हमने चेक करना है कि ये आपका बाइजेक्टिव है. इट मीन्स बाइजेक्टिव मीन्स आपको इसको चेक करना है वेदर इट इज़ 1-1 और ऑन टू. अब 1-1 ऑन टू चेक करने के लिए हमें 1-1 की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ऑन टू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. फिर हम इसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ 1-1 और ऑन टू. अगर ये दोनों है तो ये बाइजेक्टिव है. नाउ वी आर टू चेक फॉर सो वी आर टू चेक फॉर 1-1 एंड ऑन टू. 1-1 फंक्शन. अब 1-1 फंक्शन कौन सा होता है? फॉर फंक्शन टू बी 1-1 ईच एलिमेंट ऑफ S मस्ट मैप टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ J. तो ये मैंने S बनाया, ये मैंने J बनाया. तो आपके यहाँ पर S1 किसके साथ है? J1 के साथ. S2 किसके साथ है? J2 के साथ. तो S1 J1 के साथ है, S2 मैप कहाँ पर होता है? J2 के साथ मैप होता है. S3 J2 के साथ मैप होता है. S4 आपका J3 के साथ मैप होता है. तो ये इटसेल्फ आपको बता रहा है कि दिस इज़ नॉट 1-1. तो ये आपका फिगर ही आपको बता रहा है ये 1-1 नहीं है. बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी देख लो. For a function to be 1-1, each element of S must map to a unique element of J. अगर हम इसको डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से भी ये 1-1 नहीं है. ना ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं. For onto function, every element in the codomain J is mapped to at least one element in the domain S. For onto function, every element in the codomain J
is mapped to at least one element in the domain S. ये हो रहा है, इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ मैप हो रहा है. तो एटलीस्ट वन मतलब एक के साथ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा के साथ भी हो सकता है. तो ये आपका ट्रू है. दिस इज़ एन ऑन टू. इसकी एक और डेफिनेशन भी आती है. एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन हैज़ ए प्री इमेज. हर एक एलिमेंट का जो कोड डोमेन में जो हर एक एलिमेंट है उसका एक प्री इमेज है. तो वो है भी है, वो दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है. सो ये आपका ऑन टू है. इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट वन वन बट द फंक्शन इज ऑन टू. इट मीन्स दिस इज नॉट बाइजेक्टिव. सो द फंक्शन इज नॉट वन वन बट इट इज़ ऑन टू. सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए हमें. तो यहाँ पर तो ये वन वन है नहीं, तो हमारा ये बाइजेक्टिव भी नहीं है. नाउ थर्ड ए पार्ट. S is this, J is this. How many one function can be there from set S to set J? हमें बताना है कि one कितने यहाँ पर फंक्शन है from set S to set J. Now function is one. Each element of S must map to a unique element in J. है ना, फंक्शन का one होता है जब each element of S must map to a unique element in J. इसका मतलब S1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं. S2 के पास 2 चॉइसेस है, क्योंकि अगर S1 के पास 1 चलेगी तो S2 के पास मैप होने के लिए कितनी चॉइसेस रहेगी? 2. S3 के पास 1 रह गई. तो इट मीन्स देर आर टोटल नंबर ऑफ one फंक्शन फ्रॉम S to J इज 3 into 2 into 1, that is 6. Now third B part. S is this, R1 is this is given. We are to write minimum ordered pairs to be included in R1 so that R1 is reflexive but not symmetric. ये symmetric नहीं होना चाहिए but reflexive होना चाहिए. उसके लिए आपके पास इसके अंदर S1 इसके अंदर आना चाहिए, S2 इसके अंदर आना चाहिए, S3 इसके अंदर आना चाहिए और S4 इसके अंदर आना चाहिए. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास in order to make it reflexive we will include all these elements but it is not symmetric. इसका मतलब अगर S1 S2 इसके elements हैं, इसका this is अगर इसमें S1 S2 है तो इसमें S2 S1 होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक. अगर इसमें S4 S2 होगा तो वो इसका सिमेट्रिक बन जाएगा. इसका मतलब हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर, अदरवाइज ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा. तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए आप इसमें इंक्लूड करने वाले हो आप इसमें इंक्लूड करने वाले हो S1 S2 S3 S4 बट आप इसमें कोई और नहीं करोगे, अदरवाइज ये आप ये इंक्लूड नहीं करोगे, अदरवाइज ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा. ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो आप इसमें इंक्लूड करने वाले हो. नाउ 37th क्वेश्चन. 3 persons, Amber, Bonzi and Comet are manufacturing cars which run on petrol and battery as well. Their production share in the market is 60%, 30% and 10% respectively. Of their respective production capacities, 20%, 10% and 5% cars respectively are electric or battery operated. Based on the above, answer the following. इस तरह से इन्होंने एक फिगर दिया हुआ है जिसमें उन्होंने एक कार बनाई हुई है और वो उसका चार्जर बनाया हुआ है. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड कार इज़ एन इलेक्ट्रिक कार? फर्स्ट का बी पार्ट है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड कार इज़ ए पेट्रोल कार? सेकेंड क्वेश्चन. ए कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट? Third, a car is selected at random and is found to be electric. What is the probability that it was manufactured by Amber or Bonzi? Now, according to question, cars are manufactured by Amber, Bonzi and Comet. Let A denote car is manufactured by Amber, B denote car is manufactured by Bonzi, and C car is manufactured by Comet. Now, probability production share of A, that is 60 by 100, that is 0.6. Probability of production share of B, that is 30 by 100 is equal to 0.3. Probability of production share of C, that is 10 by 100, that is 0.1. A denote car is electric,
and let P denote car is petrol. Now probability of E given A. Probability कार इलेक्ट्रिक है और A का प्रोडक्शन शेयर है, उसकी जो probability दी गई है वो 20/100 that is 0.2. Probability of E given B, मतलब वो इलेक्ट्रिक है, probability इलेक्ट्रिक है और उसमें B का जो प्रोडक्शन शेयर है उसकी जो probability दी गई है वो 10/100 that is 0.1. Probability of E given C, वो आपको दी गई है 5/100 that is 0.05. अब आपके पास probability of A, आप probability of B, probability of C आपके पास है, probability of E given A, probability of E given B, probability of E given C आपके पास है, probability of कार आपकी पेट्रोल की है और उसमें A का प्रोडक्शन शेयर है, उसकी जो probability आएगी वो 80/100 आएगी. तो वो 20% दी गई है इलेक्ट्रिक कार की, तो 100 में से 20 गया, मतलब 80% दी गई है वो पेट्रोल कार की और उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 80/100 दैट इज़ 0.8. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन B दैट इज़ 90/100 इज इक्वल टू 0.9. प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन C दैट इज़ 95/100 दैट इज़ 0.95. तो यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये 80% कैसे आया, क्योंकि पेट्रोल कार की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी दी गई है वो 20% दी गई है, तो उसका 100 में से 20 गया तो 80 आया, 100 में से 10 गया तो 90 आया, 100 में से 5 गया तो 95 आया. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार. तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन सी. अब इसमें सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, आप इनको कैलकुलेट करोगे, दिस इज द आंसर. इसी तरह प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड कार इज ए पेट्रोल कार, तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यूज पुट करोगे और इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. अगर 1 में से ये माइनस करते हो तब भी आपके पास ये आंसर आ जाता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट, ए कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट. तो आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ई. तो इसमें ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगेगा, आपने फॉर्मूला लगा लो. ये आपने टोटल प्रोबेबिलिटी पहले निकाल ली है, तो ये मैंने वहाँ से ले लिया और ये अपने वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन सी की वैल्यूज पुट कर लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर इज़ 1/31. थर्ड का बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन ई. तो इसका आपने ये फॉर्मूला लगा लेना है. तो दिस इज अगेन इज इक्वल टू 0.155. इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो और इनको कैलकुलेट कर लो, दैट विल कम आउट टू बी 30/31. सो दैट इज़ द आंसर. बस ये कैलकुलेशन करने में जरा गलती मत करना, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 30/31. 38th क्वेश्चन, आपको पेपर के अंदर इस तरह का फिगर प्रोवाइड किया गया था. इसमें ये एक सड़क बनी हुई है और इसके ऊपर ये लाइट्स लगी हुई हैं. तो मुझे बहुत अच्छा फिगर नहीं बनाना आता, तो मैंने एक रफ सा स्केच आपको यहाँ पर बनाने की कोशिश की है. तो यहाँ इस तरह का फिगर आपको प्रोवाइड किया गया था. ए स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन. The lights are set up in such a way that the intensity of light at any point x meters from the start of a street can be modeled by fx is equal to e raised to power x sin x, where x is in meters. Based on the above, answer the following. Its first question is, find the intervals on which the fx is increasing or decreasing. X belongs to 0 to pi. Verify, second part, verify whether each critical point when x belongs to 0 to pi is a point of local maximum or local minimum or a point of inflection. Now fx is e raised to power x sin x. पहले fx dash x निकाल लो, ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा. सो प्रोडक्ट रूल में e raised to power x sin x प्लस e raised to power x cos x ये आ जाएगा. इसमें से e raised to power x कॉमन ले लो, आपके पास ये आ गया. Now f dash x is equal to 0. It means आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल टू -1, tan x इज इक्वल टू -1. नाउ x बिलोंग्स टू 0 to pi, सो tan x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सो आपके पास tan x आ जाएगा tan pi minus pi/4, दैट इज tan 3pi/4. तो x की वैल्यू आ गई 3pi/4. अब इंटरवल ले लो 0
to 3 π/4। तो एफ डैश एक्स आपके पास ये आ जाएगा। इस इंटरवल में अगर आप कोई पॉइंट लेते हो उसको सब्स्टिट्यूट करके देखो तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा एफ डैश एक्स। टेक सम एंगल इन दिस, यू विल सी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब लेके देख लो तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस। अब आप ये वाला इंटरवल ले लो, इसमें एफ डैश एक्स आपके पास ये है। अगर कोई भी अगर एंगल इसके बीच में लेते हो उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देखोगे लेस देन 0 आ गया। इट मीन्स सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नाउ सेकेंड पार्ट, वेरीफाई वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट व्हेन एक्स बिलोंग्स टू दिस इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम और ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गया 3 π/4। सो वी आर टू चेक द साइन ऑफ दिस। इफ वी टेक एनी एंगल लेस देन दिस, we see f dash x is greater than 0, so function is increasing. If we take any angle greater than this, we see f dash x is less than 0, so function is decreasing. So x is equal to 3 by 4 is a point of local maximum. तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि अगर हम इससे कम लेते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है और वो ज़्यादा लेते हैं तो डिक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है।